This is Neil David Katwal again. It's a Tuesday, and I'm live again with my show Chit Chat with Neil David. So today I'm bringing one guest who is a very experienced in this field, a young, energetic, and a handsome. He's from Siliguri, West Bengal, and yeah, he's Mr. Srijan Sapkota, ex-technical manager, young entrepreneur, and he have so much in him. So to share today. So I'm waiting for him and waiting for Mr. Srijan to be online, and hopefully he will say hi to me, and then I will start. I will invite him. Thank you, Nora, and greeting. Yeah, how are you? She was my student in Siliguri. Now I guess she is in Bangkok, and yeah. So hello to everyone. So we are talking about a lot of things today. I'm waiting my guest for today, a very special guest with Srijan Sapkota. Okay, I'm going to add him. I'm inviting my guest today. Okay, I'm connecting him, young, handsome, and a very bright today. He will share a lot of experience with you. Hello, Srijan. Welcome on so TikTok with Neil David. Hello, Raju. How are you? Thank you so much for having me today. Oh, I'm good. How is in Siliguri? How is all the Siliguri people are doing? Hopefully, they are doing good and safe. So they all are fine, safe. A lot of new insights coming in every time. So there has been a complete lockdown in few areas starting from today. So we all are optimistic, positive. Let's see how it develops. Definitely, we will hope for best. So, Srijan is also Nepali, but he's from Siliguri, and we'll talk in Hindi today. Because our guests are mostly like from Nepal and India, so they need to understand our conversation. So मैं लेट नहीं करूंगा. मैं इस शो के लिए मिस्टर Srijan, अभी मैंने पहले बता चुका हूँ आपको. He's a very young, talented, energetic, and he have so much in him. So let's share all those things from inside to outside with us today. So Srijan, welcome to the show, this TikTok with Neil David. Thank you so much. Thank you so much for having me today. Welcome. It's a pleasure to see you. So it's the first time I'm seeing you. I'm talking to you live. So I've been following you for a long, long time. So it's absolutely an honor to be part of the show. Well, that's my pleasure. And then, okay, let's start with the first beginning of your childhood, isn't it? It's like a child. जब हम पैदा होते हैं, बचपन के यादें बहुत सबसे प्यारे होते हैं कि बचपन के यादें जैसे तो सुकून कहीं किसी को नहीं मिलता है. तो सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं बचपन की यादें, वो जिंदगी, वो दिन जुड़ते. तो मैं जानना चाहता हूँ कि सृजन की जिंदगी बचपन कैसे गुजरा. बचपन तो अभी जैसे एक सबके जैसे गुजरा. तो हैविंग सेड दैट, अभी अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अपना वीडियो में भी मैंने कहा है पहले कि जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था. सो आई थिंक इट इज क्वाइट कॉमन विद जो भी ग्रो अप करते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी हैड फैंटास्टिक चाइल्डहुड. और जैसे हम सबको पता है दैट आवर चाइल्डहुड इट शेप्स अस फॉर आवर फ्यूचर, एंड अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. So I think I'm really fortunate to have a blessed childhood. Thank you to my parents. Wow, बहुत लोग खुश नसीब होते हैं, मुझे अच्छा पेरेंट्स मिले, अच्छा चाइल्डहुड मिले. जैसे बहुत याद जुड़ते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बचपन शरारत. सृजन से भी हमने अभी जाना है. मैं एक आपका कोई ऐसा यादगार जो बचपन का शायद फ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ हो, जो थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं आप हमारे साथ. बचपन में तो ढेर सारे होता है ना, बचपन में एक इंसिडेंट फिर भी आपके दिल में जो बैठा हो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे वो चीज. बहुत सारे अभी फिलहाल अगर आप मुझे पूछोगे देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द मेमोरी. खाली वहां से एक चीज को प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. बट आई थिंक जो सब लोग एक साथ रिलेट कर सके तो हम जो सब सुनना चाहते हैं, ज्यादा तो सुनने के टाइम.
सो आई थिंक बचपन में आई थिंक जो भी शरारतें हम लोग करते थे, जो भी पापा से डांट मिलती थी, मार मिलती थी, आई थिंक सबका ये एक चीज कॉमन है। तो जैसे मैंने आपको कहा, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर मेमोरीज, खाली एक चीज को पिक एंड चूज करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। मेरे लिए एक चीज बहुत याद आती है, जब भी मैं बचपन की बात करूँ ना, हमेशा याद आता है। मेरे पिताजी तो अभी गुजरे पड़ता था। मेरे ट्यूशन लाइक मुझे ट्यूशन जाना होता था। मेरा पिताजी सरपंच थे, मुझे ट्यूशन जाना होता था हर एक समर हॉलीडेज में। तो हम दोस्त लोगों ने क्या किया, वो पेड़ बिना ट्यूशन जाके हम लोग पेड़ में खेल रहे थे, तो मेरे पापा ने देख लिया था मुझे उस दिन। तो, तो घर में जब शाम को आया तो मेरे पापा ने पूछा कि भाई तुम ट्यूशन गए? हाँ आज ट्यूशन जाके आए हो। अच्छा आजकल तुम्हारे ट्यूशन पेड़ में पढ़ाते हैं? बोलते मेरे पापा ने। तो मैं कभी नहीं भूलता वो चीज, बहुत मार पड़ी थी ऑनेस्टली। तो आप सिलगुड़ी से फिर आपके सैलून इंडस्ट्रीज, ब्यूटी इंडस्ट्रीज के जर्नी, तो आपको एक लाइक होता है ना एक इंटरेस्टिंग पार्ट जिंदगी में, जैसे मेरे भी अपने इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इस करियर में आने के लिए। तो आपको कैसे मोटिवेट हुआ कि मैं इस इंडस्ट्रीज में जाऊंगा, मतलब इस सैलून ब्यूटी इंडस्ट्रीज में? आई थिंक एक काफी इंटरेस्टिंग सा जर्नी रहा है मेरा, कि मैं किस प्रकार से इस इंडस्ट्री पे आया। सो सबसे पहले एक पैकेज के तौर पे मुझे इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। सो माय मदर शी स्टार्टेड अ सैलून ऑलमोस्ट 25 इयर्स पहले, और माय डैड वाज द इन्वेस्टर, माय मदर वाज लुकिंग एट द टेक्निकल एस्पेक्ट। और एक आई थिंक मोस्ट ऑफ द हेयर ड्रेसर जो इस प्रकार का बैकग्राउंड से ग्रो कर रहे हैं वो शायद रिलेट कर पाए कि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मेरे को चिढ़ाते थे। आई वाज ऑलवेज फ्रॉम आई वाज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन सिलीगुड़ी, और हमारे लिए दुनिया बहुत छोटा हुआ करता था। सो एवरीबडी वर लाइक तू बड़ा होके बाल काटेगा, तू बड़ा होके नाई होएगा। सो मैं थोड़ा सा उस चीज को चलते हुए थोड़ा डिमोटिवेटेड रहता था। और मेरा पेरेंट्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम भी इस इंडस्ट्री में आओ, द फ्यूचर इज फैंटास्टिक, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। बट मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। सो फॉर्चुनेटली वन फाइन डे कुछ एक इंटरनेशनल ब्रांड का ट्रेनिंग चल रहा था सिलगुड़ी में। सो मेरा माँ ने मुझे उनके साथ अकम्पनी करने के लिए बोला। सो मैं जब ट्रेनिंग के लिए गया तो एक ट्रेनर आई हुई थी, और जब मैंने उनको देखा कि ऑलमोस्ट 250 प्लस लोग उनको जिस प्रकार से रेस्पेक्ट दे रहे थे, और जिस तरीका का वो बातें कर रही थी ऑन स्टेज रिगार्डिंग हेयर ड्रेसिंग। सो हेयर ड्रेसिंग तभी भी एक टाबू की तरह देखा जाता था। आप किसी के बाल काटते हो, किसी का आप नोज निकालते हो, सो उससे ऊपर हम लोग को पता नहीं था। बट वो लेडी ने क्या किया, वो लेडी ने हेयर ड्रेसिंग को एक कंप्लीटली डिफरेंट तरीका से उन्होंने प्रेजेंट किया। हेयर ड्रेसिंग में उन्होंने मैथमेटिक्स का उपयोग किया, ज्योमेट्री का उपयोग किया। आप हेयर कट करते हो उसमें डिफरेंट एंगल्स का उन्होंने नाम लिया, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। तो मेरे लिए बहुत ही एक नया सा इन्फॉर्मेशन था। केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने बात किया, किस प्रकार से कलर प्रोसेस होते हैं। सो क्योंकि हमें तो सिर्फ इतना ही मिला था कि बाल काटते, बस उसका डिग्री क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्या होता है, कुछ पता नहीं होता था। हाँ जी। सो वो सारा चीज ने मेरे को काफी मोटिवेट किया, और मन में बस एक ही बात था कि मैं भी इनके तरह एक बड़ा ट्रेनर बन पाऊं, या मैं भी एक स्टेज में खड़ा हो सकूं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकूं। सो आई थिंक वहां से मेरा एक जो बोलते हैं ना, एक कॉलिंग जिसको बोलते हैं। करियर सब बनाते हैं, जॉब सब करते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रू कॉलिंग आपको मिल जाए तो पैशन बन जाता है वो चीज। तो वो पैशन की तरह ही मैंने फॉलो किया। मैं ट्रेनिंग के लिए गया, और कुछ सपोर्ट मिले मुझे कुछ लोगों से, जिसका चलते मैं डायरेक्टली एक हेयर कॉस्मेटिक्स ब्रांड में एज अ ट्रेनर मैंने काम चालू किया। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। इट्स बीन फैंटास्टिक। हाउ इन लाइक आप कितने साल के थे जब आपने शुरू में आपके एक झुकाव हुआ, जैसे कि मुझे इसमें जाना है, आपने ठान लिया, आपने बोला एक कॉलिंग है, दैट्स अ वन वंडरफुल थिंग्स दैट कॉलिंग। मुझे आज भी लगता है, अगर मैंने कभी हेयर स्टाइलिस्ट बनने का सपना नहीं देखा था, फैशन डिजाइनर बनना था मुझे। लेकिन जब मैं एक सिंगापुर के एक सैलून में गया बहुत साल पहले, तो मुझे हेयर कट करना था। वहाँ स्टाइलिस्ट लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे, तो मुझे वहाँ भी एक छोटा सा कॉलिंग आ गया दिल में, व्हाई डोंट यू पिक दिस करियर। तो आप कितने साल के थे उस वक्त जब आपको एक लाइक होता है ना कॉलिंग आता, आपने ठान लिया कि मैं इस फील्ड को अपनाऊंगा, इस करियर को अपनाऊंगा? तो आप कितने साल के थे उस वक्त? मैं लगभग आपका 18 इयर्स ओल्ड था तब। सो जब ये मैं वो सेमिनार को मैंने अटेंड किया था।
सो और जब मैंने कंपनी भी ज्वाइन किया, आई वाज समवेयर अराउंड 19 इयर्स ओल्ड जब मैंने एक के रूप में मैंने कंपनी को ज्वाइन किया. सो बाय फार जितना मुझे पता है वो टाइम में आई थिंक ऑल ओवर इंडिया सारे ब्रांड मिला के आई वाज द यंगेस्ट पर्सन ज्वाइन ऑल इंडिया. हम्म। मैं अभी मिर्देंदु भाई से मंडल जी से बात कर रहा था. Yes, please go ahead. Can you hear me? Yes, मैं अभी मिर्देंदु भाई से बात कर रहा था. मिस्टर मिर्देंदु मंडल. He know very well to you. He's saying a good evening to you, Srijan sir. Yeah, he's from Calcutta and he's really daring my brother, Mirdendu, and yeah. So he's my ex-colleague. Yeah, he told me we keep on chatting, so we often chat each other. So ये जर्नी होते हैं ना, कोई बोलते हैं इतना टफ होता है जर्नी, इतना इजी होता है, तो आपके आपको कितना इजी या टफ लगा या कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको इस? स्ट्रगल तो एज सच जब आप जॉब करते हो, जॉब का खुद का एक चैलेंजेस के साथ वो आता है. सो चाहे आप कोई भी फील्ड में हो. सो आई थिंक अगेन मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानूंगा कि मेरे जो भी मेंटर्स रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रहे हैं, दे हैव बीन रियली काइंड, रियली हेल्पफुल. और विदाउट नेमिंग फ्यू पीपल, दे नो फॉर श्योर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के, जैसे हैंड होल्डिंग बोलते हैं हम लोग, सो उन्होंने मुझे हैंड होल्ड करके मुझे इस मेरा करियर का प्रोग्रेशन के लिए मुझे हेल्प किया है. सो चैलेंजेस बहुत सारा रहा है और उसको ओवरकम करने में जो मजा है, आई थिंक सबके पास चैलेंजेस आना जरूरी है, बिकॉज चैलेंजेस ही आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस पर्सन बनाते हैं फ्यूचर में. जहाँ चैलेंजिंग अप्स एंड डाउन ना हो, वो बन ही नहीं पाता. उसको आपको बोलते हैं ना, आपको एक नाइफ बनाना, हथियार बनाना भी आग में पिघलना पड़ता है आयरन को. तो जब तक आप एब्सोल्युटली इसलिए आपने भी बहुत मुश्किल घड़ी देखा होगा, मुश्किल टाइम देखा होगा. अब हम जाते इस कोविड-19 में, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम लोग कितने डिफिकल्ट टाइम फेस कर रहे हैं सब लोग, नॉट ओनली इन आवर इंडस्ट्रीज, एवरीवेयर, फ्रॉम वेजेस होल्डर टू जॉब होल्डर टू बिजनेस पर्सन टू अपर लेवल बिजनेस पर्सन. सो सब का बहुत बुरा हाल है अभी, क्योंकि इट्स बीइंग लाइक अ पेंडेमिक एंड लाइफ इज बीइंग लाइक ए स्टॉप समवेयर. सो आप क्या कहते हैं इस सैलून ओनर को और विशेष हेयर स्टाइलिस्ट को क्या कहना चाहते हैं, इस वक्त किस तरह से हमें प्रिपेयर होना चाहिए? तो सबसे पहले नील भाई, आई थिंक दिस इज वन ऑफ अ मेजर क्वेश्चन इस समय का. और सबसे पहले एवरीबडी नीड्स टू रियलाइज, सब लोग को ये रियलाइज करना बहुत ही जरूरी है कि वो अकेले नहीं है. आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज बीन अफेक्टेड, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री से हो, जो आपने भी इस बात को कहा. और हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री में अगर खास तौर पे मैं कहूँ, इसका डेफिनेटली आप जब आगे बढ़ोगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, देयर वुड बी फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन द इंडस्ट्री. जब तक कोविड नहीं था, अगर मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में जरा सा बताऊं, जिस प्रकार से इंडियन इंडस्ट्री था, यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा बूम हुआ था सेक्टर में. और द सेक्टर वाज ग्रोइंग समवेयर एट अराउंड 25% ईयर ऑन ईयर. और देयर वाज सैलून ओपनिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. स्टाइलिस्ट के बहुत ही कमी महसूस हो रहा था इंडस्ट्री में. और बहुत सारे प्रैक्टिस इस प्रकार के चल रहे थे जहाँ पे डिसबैलेंस आ चुका था इंडस्ट्री में. आज एक स्टाइलिस्ट एक सैलून में है, कल दूसरा सैलून में है, परसों तीसरा सैलून में है. इन अ वे अगर आप देखोगे, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था स्टाइलिस्ट के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ, आप अपना क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में खो रहे थे, बिकॉज आप बहुत सारे जगह पे आप शिफ्टिंग कर रहे थे, आप अपना क्रेडिबिलिटी भी खो रहे थे. तो आप और जिस प्रकार से आपको इन्वेस्टर्स, यस, एक डिग्निटी होता है ना, वो डिग्निटी नहीं रहता, बिलीव नहीं रहता मार्केट में आपको कि आप एक दूसरे हर एक मंथ, हर एक 2 महीने में एक के बदले दूसरे में चेंज करते रहते हो. तो ये है ना. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक ये कोविड-19 का जो सिनेरियो है, हम सबको सिट बैक, रिलैक्स करके और अपना करियर को एग्जैक्टली आप किस प्रकार से एक प्रॉपर प्लान्ड वे में आप लेके जाना चाहते हो. सैलून में क्या क्या मेरे लूप होल्स है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज एरिया है, किस प्रकार को वो सारे चीज को हम लोग शार्पन करें. सो एक ब्यूटीफुल टाइम है हमारे पास, सबके पास समय है. अपने स्किल्स को, अपना वीकनेस को डेवलप करने का एक राइट टाइम है. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक राइट टाइम सा है ये. अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोगों ने इसके कोविड का चलते अपने जान को भी गंवाया है.
बट बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा सा समय भी हुआ है अपने अपने क्लोज वन के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. सो मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ दैट इससे बाहर जब हम लोग निकलेंगे तो इट्स गोइंग टू बी a new world, a world of full of opportunities for us. Uh, customer is the secondary part, but first the salon owner. In my view, the salon owner are facing the toughest time according to the economics also, because due to the huge rent of like we have a luxurious salon or somewhere like in malls or everywhere, and then the stylists पर like own self उन लोग का सैलरी भी बहुत हाई है इस टाइम. लाइक सबको बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब सलून रहेगा तो स्टाइलिश रहेगा. ओनर को भी बचना चाहिए, है ना. तो मैंने खुद मेरे बहुत सारे सलून ओनर को इंडिया में, नेपाल में बात करता हूँ. इट्स अ वेरी बीइंग अ टफ टाइम. तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए? सलून ओनर को किस तरह से, लाइक अभी कोई सलून ओनर बोल रहे हैं हम गवर्नमेंट से कह के लोन लेके आगे बढ़ाएंगे बिजनेस को. इस टाइम हमें गवर्नमेंट, हम सलून वाले को क्या स्टेप करना चाहिए? गवर्नमेंट को किस तरह से देखना चाहिए हम लोग को? ओके, सो गवर्नमेंट की जब बात आती है दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी ट्रिकी. और हमें एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि सिर्फ एक सैलून इंडस्ट्री सेक्टर नहीं है जिसको गवर्नमेंट को देखनी है. सो अगर मैं इंडिया का बात करूं, सो इंडिया में आपका जो पॉपुलेशन है, अगर सब लोग डिमांड करना स्टार्ट करें कि नहीं गवर्नमेंट हम लोग को देखना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट इन टाइम्स अहेड चीजों को मैनेज करने के लिए. सो जो भी थिंक टैंक से, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव देखते हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, जो भी फाइनेंस को देखते हैं, आई थिंक दे आर इन अ पोजिशन, उनके पास वो सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कहाँ पे पैसा खर्च करने से ज्यादा मासेस को भलाई होगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज नॉट अ सर्टेन सेक्टर और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बट राइट कहाँ पे अगर हम लोग पैसा इस्तेमाल करेंगे तो बेटर बेनिफिट या लार्जर बेनिफिट के लिए वो हेल्प करेगा. सो आई थिंक दैट इज हाउ द गवर्नमेंट इज गोइंग. मैं जो एडवाइस देना चाहता हूँ बाकी स्टाइलिस्ट को या फिर सैलून ओनर्स जो भी अभी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, इज दैट सैलून जब अभी खुला है सिलीगुड़ी का, कि अगर मैं आपको बात बताऊं, things have been pretty slow, right? Client का जो inflow है, it has been very slow. Definitely. But the best part is that it is not about being slow, it is about not stopping. And this thing is not going to last forever. और it is tough times जब होते हैं तो tough times आपके पास करते हैं अगर आप खुद tough हो तो. So this too shall pass. So थोड़ा सा patience रखना जरूरी है. This time we are working in saloon, how free hand was working, like how comfortably he was working. Nowadays we are wearing like a PPs and everything. We are looking like a ghost. In fact, of designers, we are looking like oh my God. And is it necessary to like protect all those PPs and everything, or we have to protect for the certain things? So जब PP पहन के if you think कि थोड़ा ghost जैसे दिख रहा है, the best part is that these are the ghosts basically who are going to save you, and it is for the benefits of the end customers. And what customers को क्या realize करना चाहिए इस समय is that salon अपने तरफ से सारा precautions को maintain कर रहा है. अगर आप देखोगे right from the time you enter the salon till the time you don't come out of the salon, आपको every step में आपका safety के लिए salon में ध्यान दिया गया है. और मैं क्लाइंट से भी ज्यादा आई एम सो वेरी हैप्पी जिस तरीका से स्टाइलिस्ट ने अपना डिस्पाइट ऑफ नोइंग कितना रिस्क है, इन्फेक्शन आ सकते हैं, वो जिस तरीका से खुद के लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं. अगर मैं सेफ हूं तभी जाके मेरा क्लाइंट सेफ है. सो क्लाइंट को ये समझना जरूरी है कि उन तक प्रॉब्लम आने से पहले स्टाइलिस्ट आर मोर क्या बोलते हैं उसको, स्टाइलिस्ट आर मोर एट अ रिस्क बिकॉज वो बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हैं. So they are already wearing all the safety gears, they are taking all the safety precautions ताकि वो इन्फेक्ट ना होए. तो अगर वो इन्फेक्ट नहीं होंगे तो डेफिनेटली क्लाइंट का जो रिस्क होता है बहुत ही कम हो जाता है. सो नया वर्ल्ड है, नया रूल्स है, एंड आई थिंक कुछ समय के लिए 1.5-2 साल तक आई थिंक ये सेफ्टी इज गोइंग टू बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सर्विस. मैं जो मेरे अटैच थे जो भी है, सब लोग मुझे एक ही सवाल करते हैं कि सलून में तो सबसे ज्यादा खतरा है, सलून में तो वायरस आने का सबसे ज्यादा लाइक पॉसिबिलिटी है कि
लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब लोग एक डर होता है अंदर का, वो चीज में लाइक उन लोग को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वी ऑलरेडी ट्रेन आवर स्टाइलिस्ट हाउ टू प्रिकॉशन एंड एवरीथिंग, प्रोटेक्ट आवर, फर्स्ट प्रोटेक्ट आवर स्टाइलिस्ट, पहले हम अपने स्टाइलिस्ट को, सलून ओनर को प्रोटेक्ट करके ही तो हम कस्टमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ, सो हम अभी देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट लाइक पीपल स्टिल आर फियर ऑफ द COVID-19 and they are not coming to, because before people was to come for the relaxation in saloon, they were to take 3 hours 4 hours and like a big chemical walks and everything, like a beauty is part of a facial, manicure, pedicure, and but now they are only doing a basic needs like a haircut or if it is necessary the colors. So how the, and you are like you are taught with a lot of, because in Nepal the saloons are still not open, but in Siliguri, and how you are experiencing about the clients, how they are like going to get the motivation and everything. So I think सलून तक आने के लिए, सलून तक आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन लोग का डर जो चला जाए? अच्छा, सबसे पहले तो आई थिंक हमें उनको समय देना चाहिए, दैट टेक योर टाइम, बिकॉज अगर मैं आपको जरा सा नील भाई, अगर मैं आपको कुछ समय पहले का अगर मैं बात करूं, जब ये कोरोना वायरस चीज ताजा ताजा मार्केट में आया था, राइट, चाइना से जब वो स्टार्ट हुआ था, सो चाइना में हुआ है, और somebody लिविंग इन कन्याकुमारी इन इंडिया वाज फीलिंग शिवर्स, उनको डर लग रहा था कि यार चाइना में ऐसा चीज हो रहा है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मुंबई पहुंचा, वो दिल्ली पहुंचा, तो बंदा ने कहा कि यार अभी वो दिल्ली में है, अभी वो चेन्नई में, मुझे खतरा नहीं है, सो आई नीड टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस। सो होते होते वो मेरा शहर में आया, सो तब मैंने कहा कि यार वो मेरा शहर में आया है, मेरा घर से बहुत दूर है। सो जो एक फियर फैक्टर था विथ एवरी जितना जितना कोरोना वायरस आपके नजदीक में आया, उतना ही आपका अगर फियर फैक्टर भी देखिए वो गिरते गया, राइट। सो अभी अगर मैं अपने बारे में बात करूं, 15 दिन पहले तक यहाँ पे कोई वायरस एज सच था नहीं मेरा एरिया पे, और मैं जब बाहर निकलता था ग्लव्स पहनता था, घर में आते ही नहाना स्टार्ट करता था, बहुत ही मतलब एक फोबिया की तरह बन गया था कोरोना वायरस। आज मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मेरा घर में वायरस नहीं है, वायरस मेरा घर में नहीं है, मेरा दूसरा गली में वायरस है, तो मेरे को उतना खतरा नहीं है। सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि मैंने टाइम दिया, एक समय के बाद जो एक फियर फैक्टर भी था वायरस के अगेंस्ट में, वो भी कम होते होते गया। सो क्लाइंट्स को भी ये टाइम एक समय देना बहुत ही जरूरी है कि वो अंडरस्टैंड करें प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन, और ब्यूटी एक ऐसा सर्विस है जो एक एसेंशियल पार्ट है हमारा जीवन का। स्पेशली अगर हम लोग 2020 का बात करें, जब हम लोग आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं भी रेडी होके आया हूँ, आप भी रेडी होके आए हैं, तो सेल्फ ग्रूमिंग outer look is very important as well. Absolutely. तो सेल्फ ग्रूमिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है हमारे जिंदगी का। चाहे आप जॉब में भी जाते हो तो सेल्फ ग्रूमिंग, या फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू लुक गुड, तो पीपल विल एंड अप कमिंग टू द सैलून, बट वी नीड टू गिव देम सम टाइम। आउटर ग्रूमिंग करना कि आपको अंदर का टैलेंट भी बाहर निकलता है। जब तक आप आउटर आपने आपको ग्रूम नहीं करते, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, चाहे आप इंटरव्यू में जाओ या कहीं भी जाओ। तो एक ब्यूटी इज अ ग्रोइंग लाइक चेंजिंग लाइक एनीथिंग फॉर यू ऑल, लाइक फ्रॉम हेयर स्टाइलिंग टू स्किन टू मेकअप टू एवरीथिंग, एंड इट हैज अ लाइक अभी था बहुत सारे, अभी भी आएंगे, क्योंकि हर वक्त एक अंधेरा नहीं रहेगा, एक अंधेरा को चीर के हम उजाला की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली, एंड like I came to know you were just starting a business in Siliguri, am I right? If Absolutely, yes. Yeah, so what's your plan about what? Yes, so what I've done is, Neil bhai, I was into the service sector for almost 15 years. So I started my career way back in almost 2005-6 के आसपास, और अभी सिलगुड़ी का अगर मैं बात करूँ, सिक्किम हिल्स का अगर मैं बात करूँ, तो जो भी यहाँ पे कंपनी यानी जो भी प्रोडक्ट सप्लायर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, उनका फोकस, अगर मैं फोकस का बात करूँ तो बहुत बहुत कम फोकस है, और हमारे एरिया में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टाफ स्ट्रेंथ है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्टाफ हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ से सैलून से एक्सपीरियंस वगैरह गेन करके, यहाँ से ट्रेनिंग करके वो बाहर जाते हैं, और हमारे सैलून्स में भी जो ट्रेनिंग का एक क्या बोलते हैं उसको, एक अपॉर्चुनिटी जो है वो काफी लिमिटेड है। तो वो लोग जब भी कोई सैलून सप्लाईज खरीदते हैं, तो वो वही खरीदते हैं जो उनको बेचा जाता है,
और एज सच हेल्प करने के लिए उनके पास एक राइट शॉप नहीं है जो जो इंडस्ट्री को पहचानता हो कि इंडस्ट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनके एंड कंज्यूमर्स को बेनिफिट करेगा, क्या क्या प्रमोशन चलाने से उनका सलोन चलेगा। सो मैंने एक ब्यूटी सप्लाई शॉप खोला है सिलीगुड़ी में बाय द नेम ऑफ सिल्वर लाइनिंग। तो सिल्वर लाइनिंग का मतलब ही यही होता है कि जब आप कोई समस्या से गुजर रहे हो और आपको एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी दिखता है आगे बढ़ने के लिए, उसी का मीनिंग होता है सिल्वर लाइनिंग। तो मे भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैंने एक सप्लाई स्टोर मैंने खोला है ताकि मैं स्टाइलिस्ट को हेल्प कर सकूं, चाहे ताकि मैं सैलून ओनर्स को हेल्प कर सकूं और ग्रो करने के लिए। और जो फोकस बाकी कंपनी नहीं कर रही है यहाँ पे, एटलीस्ट मैं अपना 15 इयर्स का एक्सपीरियंस से सैलून के साथ पार्टनरशिप करके मैं अपना टेरिटरी को, अपना एरिया को ग्रो कर सकूं। सो दैट इज ऑल अबाउट। जब मुझे जब पता चला ना कि सृजन शॉप मतलब लॉन्च कर रहे, खोल रहे हैं, तो डेफिनेटली आई फील लाइक दिस इज व्हाट अ पार्ट ऑफ लाइफ एजुकेशन। मैं भी जब भी बोलता हूँ मैंने हेयर स्टाइलिंग में एजुकेट होके आया हूँ मैं, तो आई कैन ट्रेन द पीपल, आई कैन एजुकेटेड इन द हेयर। तो ऐसे ही कि सृजन ने तो टेक्निकल पार्ट में एजुकेट होके आए, तो व्हाट अ गुड कॉम्बिनेशन। अब सिर्फ कोई लाइक पार्लर खोलेंगे, सलून खोलेंगे, सिर्फ वो चेयर ही नहीं ले जाएंगे, चेयर के साथ साथ दे विल गेट अ गुड लाइक प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम यू, है ना। तो आपसे बहुत बातें सीखेंगे, बहुत सारे सलून के बारे जानेंगे एंड बहुत नॉलेज। इट्स अ वेरी लाइक अ precious thing for me. It's a like for every like northeast and entire India I can say, but also at the beginning I can say for the northeast, it's a very good opportunity to randomly you go to the shop who don't have the knowledge. Okay, मुझे चेयर लाना है, चेयर ले जाओ, प्रोडक्ट लाना है, प्रोडक्ट ले जाओ, बस उतना ही। लेकिन इफ यू गेट द नॉलेज, एजुकेशन लाइक उसके साथ साथ आप एजुकेशन मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल, इजंट इट। सो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, तो मैं डेफिनेटली सिलगुड़ी आके जल्दी मिलना चाहता हूँ। तो फैंटास्टिक। हमने दोनों ने साथ साथ में जर्नी शुरू किया है। मैंने भी फर्स्ट सैलून 2006 में ही शुरू किया था। देयर वर सो मेनी लाइक for me it was so many mental pressure, physical pressure, because mental pressure in the sense कि नेपालमा हामी नेपालीलाई कपाल काटेको क्षेत्री बाहुन माता अझै हैन कि एक्सेप्टै गर्दैन थियो। फर्स्ट अफ अल आई हैव टु फेस द लट अफ च्यालेन्जेस। अनि फिजिकली आई डोन्ट नो हाउ मच पिपल विल एक्सेप्ट मी बिङ अ हेयर स्टाइलिस्ट लाग्थ्यो त्यतिखेर हैन, कति मान्छेहरूले मलाई अब एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। तर आई एम सो लकी, आई सेड आई एम वान अफ द भेरी लकीएस्ट पर्सन कि मुझे होल नेपाल, इन्डिया एन्ड अलट अफ पार्ट्स अफ ग्लोब्स अरूतिर पनि मलाई त्यति नै माया गर्नुभयो हैन। उहाँहरूले त्यति नै मेरो ट्यालेन्टलाई हैन। अब म एकजनाले त हरेकतिर काम गर्न भ्याउँदिनँ, बट माई टिम आर वर्किङ भेरी वेल। आई एम सो प्रिभिलेज एन्ड ब्लेस्ड विथ द टीम टुडे। सो तो मैंने क्या सोचा, मैं अकेला रह गया। तो अभी मेरे पार्ट में मेरा बेटा भी आ रहा है, डेनियल, तो वो मुझे हेल्प कर रहा है। तो ही इज लुकिंग ऑल द मैनेजमेंट, सो आई थिंक वी ग्रो टुगेदर टू मेक मोर स्ट्रॉन्गर ब्रांड। सो मैं फिर भी सलून की तरफ ही आती हूँ, कोविड-19 की तरफ ही आता हूँ कि अभी मार्केट में भी रेस्ट्रिक्शन आने वाला है, एक क्राइसिस आने वाला है, इकोनॉमिक्स क्राइसिस तो आ ही चुका है। तो बहुत बिजनेस के साथ सुना है, बहुत सलून भी सरवाइव नहीं करने जा रहा है, मतलब वो सरवाइव नहीं हो पा रहा है। तो इसमें क्या एनालिसिस है आपका, क्योंकि आपने मार्केट सर्वे किया है, एनालिसिस किया है, तो हाउ यू डिफाइन फॉर दिस? सो अभी देखिए, अभी जो समय से हम लोग गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं आगे जाके, सो जिसको हम लोग रिसेशन कहते हैं, राइट, मंदी जिसको हम लोग कहते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी बिजनेस में कैश फ्लो होना बहुत ही जरूरी है। सो सैलून बिजनेस के लिए भी कैश फ्लो आता है फ्रॉम कस्टमर्स। सो अगर कस्टमर्स का फ्लो कम रहा सैलून में, सो उनके जो भी ओवरहेड्स है, उनके जो भी खर्चे हैं, अगर सैलून मीट नहीं कर पाता है, आप डेफिनेटली एज अ बिजनेस पर्सन आप 6 महीना का, आप 7 महीना का एक बफर अमाउंट कैरी करके आगे चलते हो कि कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस से लड़ने के लिए आप एक बजट रखते हो अपने पास। वो करना चाहिए हर एक बिजनेसमैन को। सो अगर आप वो भी एग्जॉस्ट कर बैठते हो, सो डेफिनेटली आगे जाके बहुत सारे सैलून्स बंद होंगे और आपको रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि आप किस तरीका से आफ्टर द एंटायर सिनेरियो इम्प्रूव्स, आप अगर आप पैशनेट हो आप इस ट्रेड पे,
ब्यूटी सेक्टर के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हो तो ये आपको कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज लाइक अ मोबाइल फोन। हर एक बंदा को चाहिए ही चाहिए, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, राइट। सो उसके लिए आपको कैटर करने के लिए आपको ब्यूटी सैलून्स का दरकार पड़ेगा ही पड़ेगा। सो लाइक आई सेड, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। और जो कंटिन्यू कर सकते हैं उनके लिए फायदा, जो नहीं कर सकते हैं दे ऑलवेज कैन मेक अ कम बैक। सो सिचुएशन आई होप एंड प्रे कि ये काफी जल्दी ये ठीक हो जाए। अभी अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं, बहुत चैलेंजेस आगे है, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। हम देख रहे हैं, हमारा एडजस्ट कर रहे हैं हम क्लाइंट्स को भी कि बहुत कम आ रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि अभी आ तो रहे हैं, लेकिन उतना जो हमें सलून के लिए, केमिकल इज अ बैकबोन्स ऑफ आवर सलून्स। जितना केमिकल होना उतना हमारा ग्रोथ होना है कि नहीं? एब्सोल्युटली। सो केमिकल काम नहीं होता है, क्योंकि अभी कोई भी अभी देखिए, दिस 2020 इज जस्ट बीइंग लाइक अ सर्वाइव ईयर। वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए करते, कोई स्टाइल, फैशन या ग्लैमर के लिए नहीं करते। तो हमें लाइक होते हैं ना, पूरा रीडिजाइन करना पड़ रहा है सलून को। जैसे पहले का सलून और अभी का सलून का सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। इट्स कमिंग विद द चेंजेस। हमें खास तौर पर किस किस हाइजीनिक पार्ट में हमें ध्यान देना पड़ेगा? जैसे कोई एक स्टाइलिस्ट के लिए किस तरह का हमें लाइक प्रिपेयर होना पड़ेगा? ओके, सो अभी जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि दिस इज अ न्यू वर्ल्ड विथ न्यू रूल्स। और सबसे पहले आई थिंक सारे सलॉन्स कोई ना कोई सेफ्टी मेजर्स अपनी तरफ से ले रहे हैं। और इट शुड नॉट बी सीन एज अ फैशन कि मतलब कोई कर रहा है तो मेरे को भी करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि मुझे जानना जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और मुझे उसके लिए राइट डिसइंफेक्टेंट्स यूज करना, राइट सैनिटाइजर्स यूज करना और राइट सेफ्टी किट्स यूज करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। सो जो आपका सवाल था कि किस तरीका से एक सैलून को मेंटेन करना चाहिए इन्फेक्शन ना फैले बोल के। सो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब सैलून में कोई क्लाइंट एंटर करने वाला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करें ऑन देयर मोबाइल फोन्स, सैनिटाइजर यूज करें आप ऑन द मोबाइल फोन्स। आप उनको शू कवर दे ताकि कोई बाहर का गंदगी आपका सैलून के अंदर ना आए। आप उनका हाथ को सैनिटाइज करने के लिए उनको हेल्प करें। और वंस द कस्टमर इज इनसाइड योर सैलून, आपका कंसल्टेशन जोन जो होता है इट हैज टू बी सेपरेट, जहाँ पे आपका स्टाइलिस्ट और आपका क्लाइंट एक डिस्टेंस मेंटेन करके कंसल्टेशन कर पाए। और आप ज्यादा करके कस्टमर ना लो सैलून में। एक हैबिट बनाना जरूरी है अपॉइंटमेंट सिस्टम का। आप अपॉइंटमेंट के तरीका से आप काम करो। और अगर कोई वॉक इन कस्टमर भी आता है, फ्लाइंग कस्टमर भी आता है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ना देखिए कि यार मेरे पास एक फ्लाइंग आया तो मेरे को करना ही है। आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना चालू करोगे तो दिस इज द टाइम। आपको कोई भी डिसिप्लिन लाना है, दिस इज द टाइम, राइट। आप एक नया कस्टमर आप सर्विस करके आपका बिजनेस में बहुत लाभ नहीं आने वाला है इस समय, लेकिन डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करोगे तो बाकी सैलून से अलग कहलाओगे। सो कभी कभार ड्रास्टिक मेजर्स भी एक पॉजिटिव तौर पे आगे बढ़ता है। सो यस, सो यूजिंग द राइट काइंड ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स या फिर सेफ्टी गेयर्स यूज करना, मास्क यूज करना, आपका हेड शील्ड यूज करना स्टाइलिस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाइलिस्ट को शिफ्ट में काम कराना भी बहुत बहुत जरूरी है। सो सैलून खोला हूं तो यार मुझे भर देना है स्टाइलिस्ट बुला के, आई डोंट थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। आप एक रोटेशन शिफ्ट में भी आप काम कर सकते हो। 2 दिन किसी स्टाइलिस्ट को बुलाया, 2 दिन का ऑफ दिया, उस 2 दिन में बाकी जो स्टाइलिस्ट लीव पे था उसको बुलाया। सो एक कम क्लाइंट्स, कम स्टाइलिस्ट रोटेशन में आप काम कर सकते हो। Definitely, I think it's the best thing. We have to give up space for stylists also, let them secure also, and for our customers also, isn't it? अभी COVID-19 है कि हर जगह like people are facing a tough time. So what do you think that we need to increase our price in saloons? That we have lot of saloon owner, investor has spent a lot of things in like prescription and everything, है ना? तो अभी हमें प्राइस बढ़ाना चाहिए या उसी प्राइस में हमें काम करना चाहिए? ओके, सो देखिए हमारा जो इंडस्ट्री है ना, इसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। सर्विस इज समथिंग विच हैज टू बी फ्रॉम द हार्ट, राइट। और जितने भी ब्यूटिशियन लोग होते हैं, जितने भी आपके स्टाइलिस्ट लोग होते हैं, वो सब आर्टिस्ट लोग होते हैं। उनको बिजनेस के बारे में उतना आता पता नहीं होता है। वो लोगों का भलाई के लिए, लोगों को अच्छा दिखाने के लिए वो लोग दिल से काम करते हैं। सो ये समय को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ना देख के रेट्स को बढ़ाएंगे अगर आप, तो इट इज नॉट द राइट टाइम। सब लोग एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं
or it doesn't send a very good message to our customers. Yes, one thing what we can do जो customers भी realize कर सकते हैं is जो भी मैं सेफ्टी किट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ या जो भी सेफ्टी के लिए मैं पर कस्टमर बेसिस पे एडेड खर्चा कर रहा हूँ, जो मेरा कॉस्ट आ रहा है, दैट इज समथिंग जो हम लोग क्लाइंट से रिकवर कर सकते हैं. और बीइंग अ सप्लायर, बीइंग अ सप्लायर जो मैं आपको बता सकता हूँ, सर्विस के डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द सर्विस, अगर आप हेयर कट करा रहे हो या फिर अगर आप आईब्रो करा रहे हो या अगर आप फेशियल करा रहे हो, स्ट्रेटनिंग करा रहे हो, कलर करा रहे हो, आपका जो कॉस्टिंग होता है इट इज अराउंड 100 रुपीज या लेसर देन दैट. सो अगर आप सेफ्टी राइट तरीका से फॉलो किए हो, कस्टमर वुड बी विलिंग टू पे यू मोर. बट बिल को बढ़ाना जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इट डजंट सेंड अ वेरी गुड मैसेज टू द एंड क्लाइंट्स. I think this time we have to love our client, motivate our clients, and feel them relax in our salons. So कमाने तो हम बहुत कमाएंगे, बाद में भी होगा हमारा, जब अच्छा होगा तो सबका अच्छा होगा. तो इस टाइम हमें क्लाइंट को प्रेशर नहीं करना है, उसको वायरस फ्री सलून बनाना है, वायरस फ्री इन्वायरमेंट बनाना है, तो उनको मोटिवेट करना है कि सलून तक आने के लिए, isn't it? So मेरा यहाँ एक क्वेश्चन आया आपके लिए, मिस्टर सोरेन जी पूछ रहे हैं, what you suggest to our hair stylists as they are not interested to work outside states, means outside the state, and inside the state there is no opportunity right now. So what the stylists are going to do? I don't know. Okay, so I don't know कितने लोग इस चीज को सम पॉजिटिवली देखेंगे या फिर कितने लोग मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे. अभी अगर मैं दो तरीका से आपको इसका बारे में आपको मैं आंसर करूंगा. पहला है कि एज अ बिजनेस यूनिट अगर मैं बात करूं, जो भी खर्चा हम लोग स्टाइलिस्ट के ऊपर कर रहे थे एज अ बिजनेस हाउस, सो हमारे पास एक बहुत अच्छे बजट होते थे. हम लोग स्टाइलिस्ट को उनके काम के अनुसार, परफॉर्मेंस के अनुसार हम लोग पे भी देते थे. लेकिन अभी समय कैसा है कि सब लोग क्राइसिस से गुजर रहे हैं और बजट किसी के पास भी नहीं है. तो स्टाइलिस्ट लोग के पास यस अपॉर्चुनिटीज आगे जाके आएंगे. इट माइट नॉट बी कि यार वायरस से पहले मेरे को इतना सैलरी मिल रहा था तो अभी भी मुझे उतना ही सैलरी मिलना चाहिए, तो एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होगा. सोरेन जी ने एक बात कही है अपॉर्चुनिटी के बारे में. सो अपॉर्चुनिटी एक समय पे आता है, इट डजंट कम. अभी का जो सिनेरियो है, वी आर लुकिंग एट हाउ वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं, हम लोग अपने आप को, अपना फैमिली को किस तरीका से सेफ रख सकते हैं. वंस हम लोग इससे बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली जब सलॉन्स खुलना स्टार्ट करेगा, सिलगुड़ी में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, दार्जिलिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और आप अपना खुद का सलॉन खोल सकते हो एज अ स्टाइलिस्ट. आप अपना खुद का सलॉन खोल सकते हो या फिर आप राइट अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर सकते हो. बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं रहेगा, ये फैक्ट है. इससे मैं जितना लाख भागूं इससे, लेकिन ये सच्चाई है. और समय के साथ अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी आएगा. Because it's true, because my very good friend was a technical head in a big salon company who have to lost his job recently 2-3 days before in India. So उसके पास अभी ये जॉब नहीं है, क्योंकि वो अच्छा सैलरी पेड उसको अच्छा था, तो अच्छा इनकम था, उसका लाइफ स्टाइल बहुत अलग सा था. जब अच्छा इनकम होगा तो लाइफ स्टाइल भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा, ग्रोथ होगा ही. तो अभी मुझे फोन किया था, नील लाइफ इज बीइंग लाइक अ हेल, लाइक अब सब कुछ लग रहा है सुनना जैसा हो रहा है. तो फिर मैंने उसको भी बहुत एनकरेज किया, इट्स फॉर अ टाइम बीइंग, दिस इज वेयर वी हैव टू बी सो मच पेशेंट. टाइम आएगा तुम उससे भी अच्छा कमाओगे, उससे भी अच्छा लाइफ स्टाइल जियोगे, बोल के मैंने उसको मोटिवेट किया है. तो अभी क्या होता है, मुझे आई फील कि माई पर्सनल व्यूज एज अ स्टाइलिस्ट एंड सलून ओनर बोथ टुगेदर इन अ पैरेलल. आई थिंक सलून ओनर एंड स्टाइलिस्ट हैव टू वर्क विद अ पैरेलल, सपोर्टिंग ईच अदर. कि हाँ, they can do work as a commission basis also, where they can save salon owner also, and they can run their life also for time being, like 5 months, 6 months, and once the salon will go on its own level, then the salary, whatever salary is getting or she is getting, then we can provide them according to that, I think. But this my only like feelings. I don't know. What do you think about this? So commission basis. So Neil bhai, I think commission is a fantastic. That's one of the very good step that you've just talked about. Now, अगर मैं आपके पास आता probably 4 months back,
और अगर मैं आपको बोलता कि नील भाई हम लोग एक ऐसा सर्विस इंडस्ट्री में जहाँ पे क्लाइंट के साथ काफी क्लोजली काम करना पड़ता है, लेट्स स्टार्ट वेयरिंग पीपीई किट्स, लेट्स स्टार्ट यूजिंग डिस्पोजेबल। आप मुझे बोलते यार तुम नॉनसेंस बात कर रहे हो, ऐसा भी कोई करता है भला? इतना फोबिक होने का क्या दरकार है, इतना तुमको हाइजीनिक होने का क्या दरकार है? लेकिन समय ने आपको क्या किया, आपको फोर्सफुली चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको फोर्स कर दिया। राइट नाउ यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपको पता है कि ये चेंज ही मेरे लिए आगे बढ़ने का एक जरिया है। उसी प्रकार से तो ये एंटायर सिनेरियो हम सबके लिए नया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट डाउन, स्टाइलिस्ट के साथ बैठिए सब सैलून ओनर्स, और एक प्लान आप डिस्कस कीजिए ऑन व्हाट इज द राइट वे फॉरवर्ड फॉर बोथ द पार्टीज। बिकॉज जब तक सैलून में कैश फ्लो नहीं आता है, मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता हूँ। राइट आपको मैं जॉब से अगर मैं आपको अगर मेरे पास एक ही ऑप्शन रहेगा, दैट्स द ट्रुथ, कि मैं आपको भी अब बोलूं कि भैया दूसरा देख लो जॉब और मैं अपना शटर गिरा दूं, या फिर अगर साथ में चलना है एज टू व्हील्स ऑफ अ कार्ट, तो एक प्लान बेसिस के ऊपर काम करना जरूरी है। जितना क्लाइंट्स आप कर रहे हो, शायद छोटे मोटे अमाउंट एक डिस्कस करके वो स्टाइलिस्ट को भी मिले, वो सैलून ओनर्स को भी मिले, और या फिर डेफिनेटली इस बार हम दोनों को एक दूसरे के साथ होके चलना है कि स्टाइलिस्ट का भी घर चले और हमारा भी बिजनेस चले, ताकि हम फिर आगे ले लाइफ को बढ़ा सके। इट्स अ वेरी पेंडेमिक टाइम, वेरी टफ टाइम। तो मुझे लगता है कि मैं जब नेपाल में मैंने शुरू किया था 250 स्क्वायर फीट सैलून से, और आज यहाँ पहुंचा हूँ कि लगता है कि मुझे और आगे, मुझे और आई एम वेरी थर्स्टी कि टू गो अहेड, आई वांट टू अचीव मोर, but very positive way, not harming to others, not destroying others, my own self. And I was so after working 15 years in the same industries, there is a lot of success doesn't come very smoothly. It's have a lot of ups and downs and a lot of zigzags in life. It is the part of life. So abhi mera beta ne bhi, Daniel, he also joined to me, and it's being a very one of a wonderful part of the life now, I think, because he's giving me the support one level up to the brand. So हम दोनों बहुत डिस्कस करते हैं कि अभी बैठते भी है तो सैलून के डिस्कस करते हैं हमें कैसे ले जाना है। तो मेरा बेटा बोलता है 3-4 महीना हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम ये पेंडेमिक है, लेकिन सैलून बढ़ेगा, आगे जाएगा, अच्छा करेगा, फिर सब हमारे क्लाइंट के जैसे जीवन में फिर एक सैलून मुस्कुराहट भरेगा, शायद ये ब्यूटी से, हेयर से, एवरीथिंग से। तो मुझे लगता है फिर सैलून दोबारा उठेंगे, मुस्कुराएगा क्लाइंट, मुस्कुराएंगे हम स्टाइलिस्ट और सैलून ओनर, फिर एक अजीब सा दुनिया होगा जैसा लगता है मुझे। डेफिनेटली। सो पेशेंस थोड़ा रखना जरूरी है। आई थिंक आपका बेटा बहुत राइट बात कह रहे हैं, और आपका भी जो लेगेसी रहा है 250 स्क्वायर फीट सैलून से आप यहाँ तक पहुंचे हो। सो माई माउथ इज रियली इचिङ फर मी टु स्पिक इन नेपाली। सो तपाईँले जति पनि काम गर्नुभयो अनि जति पनि काम गर्नुभयो तपाईँले, अनि त्यो पछि अब एउटा फर अ नेपाली टु लुक अप टु समबडी हु इज बिकम अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट बाई हिमसेल्फ, जो जसले आफ्नो नेपालमा त एउटा वेभ क्रिएट गर्नुभयो, तपाईँले इन्डियामा आएर पनि तपाईँले आफूलाई अलरेडी इस्टाब्लिस गर्न थालिसक्नु भएको छ। मैले तपाईँको अरू प्लान्सको बारेमा पनि सुनेको छु जुन म अहिले सोसियल मिडियामा बात गर्दिनँ। So you have fantastic plans of reaching out to more different countries, and it's a proud moment for नेपाली को लागि एकदमै एउटा प्राउड मोमेन्ट हो यो सबै कुरा, हैन? So thank you so much for being there for us. I wish all the best for Daniel. Daniel को जति पनि मैले डिजाइनहरु हेरेको छु, I think he's got a fantastic spark in him to make it big in the industry. Before I was to feel like, okay, I'm running salon only now, but I feel now something brand is coming who can be the level of Indian brands and brand of international brands. Hopefully we'll struggle very hard now, work very randomly work for it, because I feel really like a Silguri to my next home, and Silguri has given me the wings to fly to my dreams in India, and I really the people loves me like anything else in Silguri. मलाई यति माया गर्छ सिलगढीमा, म आफैलाई सिलगढी, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ यति डुवर्स मलाई यति माया दिनुभएको छ त्यो ठाउँले। त्यो माया त मेरो लागि एकदम, मैले काठमाडौँमा बसेर पनि त्यो मायाको वर्णनै गर्न सक्दिनँ, हैन? अनि अझै हाम्रो अब थुप्रै अब नेपाली, अहिले म नेपालीमै भनिदिनुहोस्, हैन?
कतिवटा ब्युटिसियन हेयर स्टाइलिस्टहरू हुनुहुन्छ नि, अब उहाँहरूले कसरी आफूलाई प्रिपेयर गर्ने, अगाडि कसरी बढाउने, अहिले उहाँहरू आत्तिराख्नु भएको छ होइन। धेरै अब नेपालीहरू अलिकति छिटो इमोसनल हुन्छन्, हाम्रो नेपालीहरू अलिकति धेरै, अनि डराउने त होइन, अब का बिजनेस के हुने हो त्यो भनेर आत्तिन्छन्। अनि हाम्रो नेपालीहरूलाई के अलिकति सजेस्ट दिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ होइन। सबैले क्वेसन पनि गरिरहेछन् नेपालीमा भनिदिनु न भनेर। हजुर, अहिले अब समय नै यस्तो छ होइन, मैले जुन अगाडि पनि यो कुरा भने, अनि हामीले एक्सपेक्टेसन्स चाहिँ अहिले अब आफ्नो करियर पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै कम राख्नु पर्यो। जति हामी धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन राख्छौँ त्यति नै हामीले सायद हाम्रो त्यो एक्सपेक्टेसन मिट नहुँदाखेरि हामीलाई धेरै त्यसले गर्दाखेरि पेन हुनसक्छ। सानो एक्सपेक्टेसन राख्ने, लेट्स स्टार्ट अगेन। हामी जसरी पहिला एउटा बिगिनर लेभलबाट हामीले स्टार्ट गरेको थियो इन टर्म्स अफ आवर फाइनान्स या फिर करियर, लेट्स स्टार्ट अगेन। दिस इज जस्ट लाइक कि हामीलाई लाइफले एउटा नयाँ अपर्च्युनिटी दिँदैछ होइन। सो देयर इज नो पोइन्ट इन फिलिङ ब्याड, बिकज तपाईँहरू जो पनि हुनुहुन्छ, आई थिङ्क हामी सबैजना त्यो बोटमा छौँ एट डिफरेन्ट लेभल्स होइन। सो तपाईँलाई आफ्नो जबको बारेमा टेन्सन छ, हामीलाई आफ्नो बिजनेसको बारेमा टेन्सन छ। म तपाईँलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स अगर मैले सेयर गर्ने हो भने निल दाई होइन, अब आई लुक भेरी अप्टिमिस्टिक, आई एम भेरी ह्याप्पी होइन टकिङ टु यु, बट अदरवाइज अल्सो आई ट्राई एन्ड किप माइसेल्फ मोटिभेटेड। मैले फेब्रुअरीमा दाजु मैले आफ्नो जब छोडेँ टु फलो माई प्यासन। मैले आफ्नो फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेँ अफ सलोन सप्लाइज। मार्चमा आई थिङ्क 15मा मैले मेरो मोस्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट हालेर मैले दोकान खोलेँ। फेरि आफ्टर प्रब्ली 5 to 7 days कोभिड भनेर सट डाउन भयो होइन। सो 3-4 मन्थ्सको लागि मेरो बिजनेस बन्द छ। म सर्भिसमा पनि छुइनँ, मैले 1 रुपियाँ न स्यालेरी छ न आफ्नो सर्भिसको न इन्कम छ। एभ्री टाइम मेरो दिमागमा के खेल्दैछ भन्दाखेरि मैले अब रेन्ट दिनुपर्छ, मेरो स्टाफ छ, मैले उसलाई पैसा दिनुपर्छ, र रेन्ट तपाईँलाई थाहै छ इट्स नट भेरी चिप होइन। सो काफी हाई रेन्ट छ। म स्टाइलिस्ट त यही भन्नु चाहन्छु कि मेरोमा यो एउटा भरोसा छ, म कन्फिडेन्ट छु कि भोलि गएर जब मार्केट बिस्तारो बिस्तारो नर्मलाइज हुन थाल्छ, आई विल मेक इट लार्ज। मैले लार्ज बनाउनुको लागि नै मैले काम छोडेर आएको छु। र हाम्रो स्टाइलिस्टले पनि जुन यो प्रोफेसनमा आउनुभयो, सबैको केही न केही ड्रिम छ। आफ्नो ड्रिम राख्नुहोस् कि म भोलि गएर के गर्नु चाहन्छु, तर एक्सपेक्टेसन अफ त्यो हाम्रो त्यस्तै कुरा फेरि दुबारा एकदमै छिटो आओस् त्यो चाहिँ नराखौँ। यसलाई टाइम दिउँ, अलिकति पेसेन्स राखौँ, अनि आइ एम श्योर गड इज गोइङ टु लुक आफ्टर इच एन्ड एभ्री वान एन्ड थिङ्स आर गोइङ टु बी गुड गोइङ अहेड। डेफिनेटली होइन। अब हाम्रो सृजनले भने जस्तो हामीले एक्सपेक्टेसन अहिले हाई राख्नु हुँदैन। अहिले हामीले होप, लुक इज लिभिङ इन होप, आई एम लिभिङ इन होप। हामीले यसलाई राम्रो होस्, यसले एउटा स्मुथ बाटो पाओस्। फेरि हामी दौडिने त दौडिहाल्छ नि होइन, तर टाइम लाग्छ। अनि हामी अलिकति पेसेन्ट भएर जानुपर्छ। अहिले मैले फेरि एउटा क्वेसन हो कि आइरहेछ, हाम्रो कल्पना पौडेल साथी नै हो मेरो, र वो ह्याप्पी होना सीखना चाहिए भनेर भन्नु। ठिक है, या इट्स अ गुड ट्रु होइन। र वी आर सो ह्याप्पी सृजन, आजको धेरै खुसी भएको छु। एन्ड आई एम सो ह्याप्पी टु हेभ यु एन्ड सेयरिङ यर भ्युज इन माई चिटचाट सो। फेरि अर्कोचोटि पनि हामी आउँला अनि सेयर गरौँला होइन। अनि थ्याङ्क यू हैविंग यू हियर एंड थैंक यू शेयरिंग योर आइडियाज। एंड ज़्यादा ज़्यादा हमरो अब आप क्या बोलना चाहते हैं कि सबके जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके लिए कुछ बोल के जाइए। अभी फिलहाल तो बस वही है कि आप यू स्टे सेफ, स्टे होम। जस्ट बिकॉज लोग, बहुत सारे लोग रास्ते में निकल रहे हैं, तो इट इज नॉट दैट थिंग्स हैव बिकम नॉर्मल। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू थिंक अबाउट योर फैमिली बैक होम, दैट आप शायद सिम्टम्स कैरी नहीं कर रहे हो, लेकिन शायद आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे केयरफुल, और पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली फॉर पीपल इन नेपाल। I really am in love with the country, so it's a very beautiful place. I have spent some time in Nepal. Thank you. And I have a lot of friends, and I think Nepal as a nation, it's very, very emotional. And going through such tough times, the people have been really brave in showing the unity that the youth have amongst each other. So a lot of new developments I can see happening in Nepal these days. But the best thing is that the entire citizen of Nepal are talking in the same language. So I pray to God that things are going to change very fast in Nepal. And so that's how it is. Thank you, Srijan, and thank you having you and sharing you. I really thank you from heart. And
definitely we'll see you soon in Kathmandu. Hope the things will go better, and then we will see. And thank you very much from all of Nepalese and Neil Davids. Thank you very much. Thank you so much for having me here. Thank you so much. थ्याङ्क यू भेरी मच. तपाईँहरूले हेर्नुहुँदै थियो, मसँग हुनुहुन्थ्यो एकदम एक्सपर्ट, तपाईँलाई धेरै कुराहरूको ज्ञान दिएर जानुभयो सृजनजी. अनि लिएर सबैलाई होइन कसरी हामीले मोटिभेट भएर काम गर्ने अनि कस्टमरहरूले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीलाई धेरै कुरा सिकाएर जानुभयो. वी आर सो मच थ्याङ्क यू. एन्ड please keep on watching my TikTok with Neil Davids. Next week, means not next week, Friday 6:30 again I am coming back, but who will be the guest? Keep on watching TikTok with Neil David. Thank you very much.